Hello students of grade 4th. Please open page number 12 in your book. We are going to start chapter number 2, How Plants Survive. Let's start with this. Circle the ones that grow in water. So, does a coconut tree grow in water? No. Moving to the next one. Does a lotus flower grow in water? Yes. So we will make a circle around it. Moving to the next one. Does a banyan tree grow in water? No. Moving to the next one. Cactus. Does a cactus plant grow in water? No. Moving to the next one. Does water lily grow in water? Yes. Again we will draw a circle around it. Moving to the paragraph. Earth has a variety of plants. They are found all over the place, from the garden to the rainforests, from the lakes, ponds to the deserts. Unlike animals, plants cannot move from one place to another. Therefore, plants develop special features in order to survive in different places. The special features that allow an organism to survive in a particular area are called adaptation. Let's understand it like this. Just like plants, our houses cannot move. So when winter comes, we install heaters. And when summer comes, we install air conditioners. And when monsoon comes, we waterproof our houses. So heaters, air conditioners and waterproofing are the special features we add in our houses in order to survive in different weather conditions. In the same way, plants also adapt some special features in them to survive in a particular area. And the development of these special features in plants in order to live is known as adaptation. Adaptation in plants. All living things adapt to their environment in order to survive. The natural home of a plant or an animal is called its habitat. So एक प्लांट और एनिमल का घर उसे कहते हैं हैबिटेट. Plants can be divided into two major groups based on the types of habitat, terrestrial and aquatic. So habitat के बेस पे plants को divide किया हुआ है two parts में, one terrestrial and second is aquatic. So what are terrestrial plants? Plants that grow on land are called terrestrial plants. वो plants जो land पे ज़मीन पे उगते हैं उन्हें कहते हैं terrestrial plants. They can be found in various geographical regions. कौन कौन से regions में find कर सकते हैं उन्हें? Terrestrial plants, they can be found in plains, mountains, deserts, swamps and coastal areas. Plants in the plains. The trees and plants of the plains mostly have many branches and numerous leaves. The leaves are renewed periodically. Most of the trees shed all their leaves at the same time once a year. These trees are called deciduous trees. Examples: teak, peepal, neem, banyan and gulmohar. जो plants plains में उगते हैं वो उनमें बहुत सारी branches और बहुत सारे leaves होते हैं. Like shown in the picture here, a lot of branches and a lot of leaves. ये प्लांट्स एक पीरियड के बाद साल में एक बार नए लीव्स को निकालते हैं और इन ट्रीज़ को कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज़. इनके एग्जांपल्स अच्छी तरह से याद कर लो: टीक, पीपल, नीम, बान्यान एंड गुलमोहर. प्लांट्स इन द माउंटेन्स. इन माउंटेनस एंड हिली प्लेसेस लाइक ऊटी, कश्मीर, दार्जिलिंग एंड हिमालयन रेंजेस इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. देयर इज़ स्नोफॉल इन सम एरियाज. द ट्रीज दैट ग्रो हियर there have to survive the cold climate and snowfall. अब जो trees वहाँ पर उगेंगे उन्हें cold climate का और snowfall का सामना करना पड़ेगा. Instead of flowers, the trees have cones and hence are also called conifers. The cones have seeds in them. Conifers have needle-like leaves which have a waxy coating. This helps the snow slide off easily. अब जो plants mountains में उगते हैं उनमें flowers की बजाय cones होते हैं और उन्हें कॉनिफर्स भी कहते हैं.
उन कोन्स के बीच में सीड्स होते हैं। कॉनिफर्स के लीव्स नेडल के शेप के होते हैं और उन पे वैक्सी कोटिंग होती है, और वैक्सी कोटिंग के कारण लीव्स स्मूथ हो जाते हैं और उन पर से स्नो ईजिली फिसल जाती है, क्योंकि उन्हें स्नो का सामना करना पड़ता है बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन अ स्नोफॉल एरिया। सो दिस इज़ वाई उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, और ये इनकी अडेप्टेशन है। ये इनकी अडेप्टेशन है कि वैक्सी कोटिंग के कारण उन पर से स्नो ईजिली फिसल जाती है। द मेन प्लांट्स ऑफ दीज एरियाज आर पाइन, स्प्रूस, सीडर, ड्यूडर एंड फर ट्रीज। अब इनकी एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफर ट्रीज और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन ट्रीज। दोनों की एग्जाम्पल सेम है, कॉनिफर्स की और माउंटेन ट्रीज की। एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करना। These trees have straight and tall trunks and needle-like leaves. They are called coniferous trees. These trees do not shed all their leaves at the same time. A few leaves fall and new ones grow. So they are always green. Hence they are called evergreen trees. Conifers अपने leaves को shed नहीं करते, सिर्फ थोड़े से leaves गिरते हैं और उनमें भी जल्दी से नए leaves आ जाते हैं, इसलिए ये प्लांट्स हमेशा ग्रीन रहते हैं और इन्हें कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज। एवर मीन्स हमेशा, ग्रीन मीन्स हरे, जो हमेशा हरे रहते हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट्स। द ग्राउंड इन डेजर्ट्स इज ड्राई। देयर इज वेरी लिटिल वाटर एज इट रेन्स वेरी रेयरली, येट द प्लांट्स लिव एंड सर्वाइव। अब डेजर्ट्स में बारिश नहीं होती और पानी भी बहुत कम होता है, बट फिर भी प्लांट्स को वहाँ पर रहना पड़ता है और सर्वाइव करना पड़ता है। कैसे सर्वाइव करते हैं अब वो देखते हैं। देयर रूट्स आर अडेप्टेड टू ऑब्जॉर्व वट एवर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। वहाँ पर अगर थोड़ा सा पानी भी होगा, जितना भी अवेलेबल होगा, उनकी रूट्स उस पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं। उनकी रूट्स क्या है, अडेप्टेड है इस चीज़ के लिए कि वो पानी अगर थोड़ा भी हो तब भी उसे ऑब्जर्व कर लें। Plants like cactus of many kinds have roots that grow deeper and are spread far out under the surface of the soil. अब जैसे कैक्टस एक मेन एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट का, और कैक्टस की बहुत सारी काइंड्स भी होती हैं, बहुत सारी टाइप के होते हैं कैक्टस, और उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर डीप ग्रो करती है, काफ़ी गहरी चली जाती हैं उनकी रूट्स, और सरफेस में पूरी तरह से फैल जाती हैं ताकि वो पानी को ऑब्जॉर्व कर सकें। They can quickly absorb even the smallest amount of water. अगर उन्हें थोड़ा सा पानी भी मिलेगा तो वो उसको भी ऑब्जर्व कर लेंगी। Desert plants normally have small leaves. इनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। The leaves of cactus are like sharp spines. अब कैक्टस के पत्ते नहीं होते, उनके पत्तों की जगह क्या होता है, स्पाइंस होते हैं। This prevents loss of water from leaves. इससे उनका पानी जो है पत्तों में पानी वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए अगर उनमें पत्ते होंगे ही नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो पानी को बचाते हैं। द कैक्टस प्लांट स्टोर्स फूड एंड वाटर इन इट्स थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स कवर्ड विद थॉर्न्स। अब जो इसका स्टेम है कैक्टस का, इसमें फूड और वाटर स्टोर रहता है। When there is no rain, the cactus uses the water in its stem. जब बारिश नहीं होती और कैक्टस को पानी की ज़रूरत होती है तो वो जो पानी इसने स्टेम में स्टोर करके रखा है उसे यूज़ कर लेता है। कैक्टस ग्रोज फ्लावर्स टू, और कैक्टस को फ्लावर्स भी निकलते हैं। डेट पाम ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक लीव्स विच हेल्प देम सर्वाइव हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। अब जो डेट के प्लांट्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग और थिक लीव्स होते हैं, ये उन्हें हॉट और ड्राई डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आर प्लांट्स इन स्वॉम्प्स। देयर आर सम प्लेसेस दैट हैव क्लेई सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, बट सिंस वाटर कैन नॉट ड्रेन अवे इट कलेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। अब कई जगह होती हैं जहाँ पर क्लेई सॉइल होता है। अब ये क्लेई सॉइल के कारण वहाँ पर जो पानी है वो जमा हो जाता है ग्राउंड पे। सो मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन सच मार्शी प्लेसेस और स्वॉम्प्स। अब ऐसी प्लेसेस जहाँ पर क्लेई सॉइल हो और पानी जो है वो वहाँ पर जमा हो जाए, उन प्लेसेस को कहते हैं मार्शी प्लेसेस और स्वॉम्प्स। और ऐसी प्लेसेस पर जो ट्री ग्रो करता है उसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव। इन सच एरियाज रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अबव द ग्राउंड इन ऑर्डर टू ब्रीथ। अब क्योंकि उसमें सॉइल में पानी भरा हुआ है तो जो रूट्स हैं वो सांस नहीं ले पाती,
वो ब्रीथ नहीं कर पाती। सो ब्रीथ करने के लिए जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के अबव ग्रो करेंगी, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करेंगी। दिस इज़ बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ अंडर द सॉइल। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल और ब्रीदिंग रूट्स। और उन जो रूट्स हैं जो ग्राउंड के अबव ग्रो करेंगी ताकि वो सांस ले सकें, उन्हें कहते हैं एरियल और ब्रीदिंग रूट्स। Plants of coastal areas. Plants in regions like eastern and western sea coasts of South India receive high rainfall. अब जो plants इन places पे उगते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी कोस्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। कोकोनट, रबर एंड पेपर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दीज रीजन्स। सो इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो। कोस्टल एरिया में उगने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल है कोकोनट, रबर and pepper. The trees of such area are evergreen and they usually have a large number of leaves. अब evergreen plants मतलब जो plants हमेशा हरे रहते हैं, उनमें जो पत्ते हैं थोड़े से अगर गिर भी जाएं तो उतने ही वापस से उग जाते हैं, इसलिए वो प्लांट हमेशा हरे रहते हैं और इनमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, a lot of leaves. These trees do not shed their leaves in winter. और ये विंटर में अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं रबर ट्री एंड कोकोनट ट्री। नोट, सम कॉमन वेराइटीज ऑफ प्लांट्स दैट बिलोंग टू द ग्रास फैमिली आर राइस, wheat, ज्वार, बाजरा, sugarcane, bamboo, etc. The plants of this family provide food for humans and animals. अब ग्रास फैमिली में जो उगते हैं प्लांट्स, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, इनको भी अच्छे से याद करना है एग्जाम्पल्स को। राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, शुगरकेन, बैम्बू एट्सेट्रा। अब ये जो हैं ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी। Now let's start with the checkpoint. Match the following. There we are given the name of the plants and there we are given the place where they grow. हमें मैच करना है कि कौन सा जो ट्री है वो कहाँ पर ग्रो करता है। द फर्स्ट वन इज सीडर। ये हमने आज ही पढ़ा है कि सीडर क्या है, एक कॉनिफरस ट्री है। सीडर कॉनिफरस ट्री है और ये ग्रो करता है माउंटेन्स में। ये माउंटेन्स में उगने वाले प्लांट की एक एग्जांपल है। सो वी विल मैच इट विथ माउंटेन्स। द सेकेंड वन इज पीपल। जो पीपल है ये हमने पढ़ा था कि ग्रो करता है प्लेन्स में। पीपल वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री विच ग्रो इन प्लेन, सो वी विल मैच इट विद द प्लेन्स। रबर ट्री, रबर ट्री हमने पढ़ा था कि ये ग्रो करता है कोस्टल रीजन में। ये रहा रबर ट्री एंड इट ग्रोज इन कोस्टल एरियाज, सो वी विल मैच इट विद कोस्टल। फोर्थ इज कैक्टस। कैक्टस हमें पता है कि कहाँ ग्रो करता है, इट ग्रोज इन डेजर्ट्स। कैक्टस डेजर्ट का प्लांट है, वी विल मैच इट विद द डेजर्ट। मैंग्रोव्स, ये भी हमने पढ़ा है कि मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं मार्शी प्लेसेस और स्वॉम्प्स में, सो वी विल मैच इट विद द मार्शी लैंड्स। सो सीडर ग्रो करता है माउंटेन्स में, पीपल ग्रोज इन प्लेन्स, रबर ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरियाज, कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट, mangroves grow in marshy lands. Now let's start with the back exercise of this chapter. Objective type questions. Tick the correct answer. Dash tree is found on mountains. अब जो माउंटेन पे उगने वाले ट्री हैं उनके एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना है। क्यों? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अब फिर से बैक जाओ, माउंटेन पे उगने वाले ट्रीज की एग्जाम्पल को देखते हैं। This is pine, spruce, cedar, deodar and fir. So, coconut, no. Mango, no. Fir, yes. Fir tree is found on mountains. The plants that grow in water are known as dash plants. Those are known as aquatic plants.
क्योंकि वाटर एंड एक्वा बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों का मतलब सेम होता है। वाटर का मतलब भी पानी होता है और एक्वेटिक का मतलब भी पानी होता है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए और एन डैश प्लांट। लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। क्यों? क्योंकि जो लोटस है वो पानी पे फिक्स रहता है, एक ही जगह पर रहता है। सो दिस इज वाई लोटस इज अ फिक्स्ड प्लांट। Plants like dash that trap insects are known as insectivorous plants. जो प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें किल करते हैं और खा जाते हैं। सो उनका एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट, लोटस, कैक्टस और नन ऑफ दीज। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो द आंसर इज पिचर प्लांट, क्योंकि पिचर प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट्स को ट्रैप करके खा जाता है। इट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। Plants growing in desert have their dash modified into spines. अब जो डेजर्ट्स में प्लांट उगते हैं उनमें कौन सी चीज़ है जो स्पाइन्स में चेंज हो जाती है और मॉडिफाई हो चुकी होती है? इट इज़ देयर लीव्स, क्योंकि कैक्टस में लीव्स नहीं होते और जो भी प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनमें लीव्स नहीं होते, उनमें स्पाइन्स होती हैं। सो उनके लीव्स मॉडिफाइड होते हैं इनटू स्पाइन्स। Next is state true or false. Pine tree grow in plains. This is false. Pine tree plains में नहीं उगता. It grows in mountains. This is why they are known as conifers as well. So pine tree plains में नहीं mountains में उगता है. Tea and coffee are obtained from the stem of a plant. फॉल्स, क्योंकि जो टी एंड कॉफ़ी है वो हम लीव्स से लेते हैं, टी लीव्स, और कॉफ़ी है बीन्स। सो वो स्टेम नहीं होता, टी के लीव्स होते हैं और कॉफ़ी के बीन्स होते हैं। कैक्टस कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। यस, ट्रू, क्योंकि कैक्टस डेजर्ट में उगता है जहाँ पर हॉट एंड ड्राई कंडीशंस होती हैं। ट्रीज ऑन माउंटेन्स हैव वैक्सी कोटेड लीव्स। यस, ट्रू, ये भी हमने पढ़ा था। वैक्सी कोटिंग क्यों होती है? ताकि उन पर से स्नो जो है वो फिसल जाए, क्योंकि वैक्सीन कोटिंग से जो लीव्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं और उन पर से जो स्नो है वो इजीली फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है। सो ट्रू। वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ट्रू, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। नेम अ प्लांट विच हैज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक। I am an underwater plant. My name is dash. We will learn about the underwater plants in the next video assignment, but for now we are just going to look at the examples. There are two examples of underwater plant. One is hydrilla and another one is tape grass. So we will write only one here. We are writing hydrilla here. Hydrilla. I am an underwater plant. My name is hydrilla. My leaves are needle shaped. I am dash. We have learnt that conifers have needle shaped leaves. So let's see. There are a lot of conifers given here: pine, spruce, cedar, deodar and fir. We will write only one. So we are going to write here pine. We will write pine here. I am dash. I live in desert. So there are a lot of trees which grow in desert. There are cactus, date palm. So we will write only one here. We will write cactus. My leaves are used in making medicine. My name is dash. So we know that tulsi is used to make medicines. So we will write tulsi here. I eat insects. I am dash. So we are going to write a plant which eat insects. So plants that eat insects is pitcher plant. So we will write pitcher plant here. I have breathing roots. My name is dash.
सो ये भी हमने पढ़ा था कि कौन से प्लांट हैं जिनमें ब्रीदिंग रूट्स होती है. द प्लांट्स दैट ग्रो इन marshy places or swamps have breathing roots. Example of such a plant is mangrove tree. So we will write mangrove tree here. I do not have chlorophyll. I absorb food from the dead and remains of organisms. I am dash. This we have studied in the first chapter. Coral root. Coral root is a non-green plant. It does not have chlorophyll. And how does it make its food? It absorbs the food from dead remains of organisms. So we will write coral root. Complete the concept map. Give examples of each type of plants. So हमें ये concept map को complete करना है by giving 2 examples of each of the following. 2 examples of terrestrial plants, 2 examples of aquatic plants, 2 examples of saprophytic plants, and 2 examples of insectivorous plants. We will study about aquatic and saprophytic plants in the upcoming assignment. So first, we will just learn their examples. Pine and fir are examples of terrestrial plants. Pine and fir are trees which grow in mountains, and these are also terrestrial plants. Lotus and hydrilla are aquatic plants which grow in water. Coral root and mushroom are examples of saprophytic plants. Pitcher plant and Venus flytrap are examples of insectivorous plants. We have studied about insectivorous plants in the first chapter as well. So make sure you learn or memorize all these examples. Now let's start with the short answer questions. First question is, what is adaptation? What is adaptation? The special features that allow an organism to survive in a particular area are called adaptation. So, जब एक organism survive करने के लिए special features को adapt कर लेता है तो उस चीज़ को कहते हैं adaptation. Which trees are called evergreen trees? Trees that remain green almost all year round are known as evergreen plants. So जो trees पूरा साल हरे भरे रहते हैं उन्हें कहते हैं evergreen trees. What are the adaptation of trees in hilly areas? Hilly areas और mountain areas में trees की क्या adaptation होती है? In hilly areas, trees have needle-like leaves which have a waxy coating. So उन leaves में जो leaves होते हैं वो needle like होते हैं, needle की shape की होते हैं और उन पे waxy coating होती है. इस coating से वो smooth हो जाते हैं और उन पर से snow जो है वो फिसल जाती है. So this is their adaptation. What are coniferous trees? The trees like pine, fir, cedar, which grow in mountains, have straight and tall trunks and needle-like leaves. They are called coniferous trees. So उन trees में क्या होता है? वो trees हैं pine, fir, cedar. ये trees जो mountains पे grow करते हैं और उनकी जो trunks हैं वो straight and tall होती है और leaves होते हैं needle-like, needle की shape की. इन्हें कहते हैं coniferous trees. How do floating plants float on water? Floating plants are spongy and filled with air. उनमें हवा भरी होती है और काफ़ी स्पंजी होते हैं. This makes the plants very light and helps them float on water. इससे क्या होता है जब उनमें हवा भर जाती है तो जैसे कि हम देखते हैं बैलून्स में जब हवा भरी होती है तो वो उड़ने लगते हैं. वो मतलब कि उनका जो वेट है वो काफ़ी हल्का हो जाता है. वैसे ही इन प्लांट्स में भी होता है. जब इनमें हवा भरी होती है तो ये प्लांट्स जो हैं काफ़ी लाइट हल्के हो जाते हैं और इसके कारण वो पानी पे फ्लोट कर सकते हैं. डिस्क्राइब द एडेप्टेशन इन अ लोटस प्लांट. लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट. लोटस प्लांट हैव रूट्स दैट फिक्स इट इन द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. सो लोटस प्लांट क्या है? ये फिक्स होता है एक पॉन्ड पे. Their stems are hollow and have air spaces which helps them to float on water. उनका जो स्टेम होता है वो खोखला होता है अंदर से और उनमें एयर के लिए स्पेस होती है जिससे कि वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकता है.
What are epiphytes? The plants that grow on another plant but does not depend on it for its nutrition are known as epiphytes. हमने एक और प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? वी हैव लर्नड अबाउट द पैरासिटिक प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 1. ये प्लांट्स भी क्या होते हैं? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. इसके एग्जाम्पल थे कस्कटा एंड मिस्टलटीटी. जो एपीफाइट्स होते हैं ये भी वैसे ही होते हैं, बट ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, पर उस पर न्यूट्रिशन फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड नहीं करते. सो दिस इज़ द डिफरेंस. पैरासिटिक प्लांट दूसरे प्लांट्स पे ग्रो भी करते हैं और उन पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड भी करते हैं, बट ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं बट डज नॉट डिपेंड ऑन इट फॉर द न्यूट्रिशन. तो उन्हें कहते हैं एपीफाइट्स. वट आर एरियल रूट्स? The roots of the plants that grow above the ground in order to breathe are known as aerial or breathing roots. So जो aerial roots होती हैं वो मैंग्रोव ट्री में होती हैं. मैंग्रोव ट्री grows in swamps और marshy places. मार्शी प्लेसेस में पानी जो है वो ग्राउंड पे कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो रूट्स हैं उनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है. सो वो सॉइल के अंदर नहीं ग्रो करती, सॉइल के अबव ग्रो करती हैं इन ऑर्डर टू ब्रीथ. सो उन रूट्स को कहते हैं एरियल और ब्रीदिंग रूट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.